Okay, dear friends, good evening. How are you? Yesterday we have left the topic on the issue of the causes of the French Revolution. My friends, once again, I am just giving you the suggestion. You take all the subtopics as an organic whole. You are going across part second. Part first is ancient world, medieval world, and the rise of modern West. That is the first part. Second part has started from Enlightenment. That is the first subpart, Enlightenment. The second subpart is American Revolution. And the third subpart is French Revolution, which French Revolution I have just started study. And I have to go further. So my students, here I am just requesting you to make them the organic whole, because part two, all the topics are linked to each other. In part first, we have observed how did ancient empire disintegrated, and there was the rise of medievalism. Medievalism means feudalism, Holy Roman Empire, universal church system, etc. How did these medieval institutions just fractured, and there was the rise of modern West. But after the rise of modern West, once again the rivalry had to start between the monarchy supported by aristocratic class and church, because there was the changing power equation now in Enlightenment. Earlier there was the equation between monarchy and the rising middle class against aristocratic class and church. But when the rising middle class became powerful and it started to give a challenge to monarchy itself, so monarchy sought the support from the, you can say now, the broken bone, because the aristocratic class and the church, their bone was already broken, so they were no more a challenge for the monarchy. So here that's why now the rivalry had to start between monarchy and the middle class, and monarchy is getting support from the old enemy aristocratic class, or the old rival aristocratic class and church. So the changing power equation. But this rising middle class gave a code of conduct, presented a code of conduct before monarchy, aristocratic class and church. So in one sense it was enlightenment. यही प्रबोधन था. मतलब मैंने आपको बताया कि आपने पहला पार्ट में क्या पढ़ा था, एंशिएंट एम्पायर कैसे डिसइंटीग्रेट किया, कैसे उनका पतन हुआ, विघटन हुआ, कैसे मध्ययुगीन संस्थाएं आई, मेडिवल इंस्टीट्यूशंस, सामंतवाद, यूनिवर्सल चर्च सिस्टम, फ्यूडलिज्म, यूनिवर्सल चर्च सिस्टम एंड होली रोमन एम्पायर, और कैसे ये जब ब्रेक हुआ तो फिर राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट हुआ. फिर कैसे पार्ट टू में देखा कि फिर नया पावर इक्वेशन आया. अब पहले मोनार्की और मिडिल क्लास में इक्वेशन था, दोस्ती थी, अब वो दोस्ती टूट गई. अब मिडिल क्लास ने मोनार्की को चैलेंज करना शुरू किया, तो मोनार्की ने फिर उसी एरिस्टोक्रेटिक क्लास एंड चर्च का हाथ थाम लिया. लेकिन तीनों के सामने कोड ऑफ कंडक्ट रखा राइजिंग मिडिल क्लास ने, और कहा कि भाई आप अपने आप को बदल सकते हो तो बदल लीजिए, नहीं तो रेवोल्यूशन हो जाएगा. और वो नहीं बदल पाए तो रेवोल्यूशन हो गया. और पहला रेवोल्यूशन अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, जिसने अमेरिकन कॉन्टिनेंट में चेंज आया. अब देखो, अब मिडिल क्लास का राइज है ये माय स्टूडेंट्स. पार्ट टू ऑफ मिडिल क्लास का राइज देखोगे, और जब मैं पार्ट थर्ड पर आपको ले जाऊंगा तब आप लोअर क्लास का राइज देखोगे. तब मैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कराऊंगा तो लोअर क्लास का राइज देखोगे, फिर सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म देखोगे, फिर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास के बीच राइवलरी देखोगे, एंड कैसे इंपीरियलिज्म को बढ़ावा मिलेगा, कैसे सोशलिज्म को बढ़ावा मिलेगा, और फिर कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर घटित होगा, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को दुनिया फिर किस डायरेक्शन में जाएगी. ये सभी एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है, लेकिन उसको देखने के लिए थोड़ा एक सतर्क विजन चाहिए, वेरी केयरफुल विजन. तो अभी फिलहाल हम आपको बता रहे कि मिडिल क्लास गिव अ चैलेंज टू मोनार्की, चर्च एंड द एरिस्टोक्रेटिक क्लास, and then middle class just presented a code of conduct before them. If you will not change, then you have to take some recourse. So in American Revolution, there was the full-fledged middle class revolution, and in American continent there was the you can say foundation of not the fully democratic, because even after American Revolution, universal suffrage was not introduced. Rather, there was a limited franchise, but a major step in the direction of democratization, that is, elected government, fundamental rights, federal system of the government, republican
government, means ki the Republican model, the rise of Republican model, so all happened. Then you coming to the French Revolution. In French Revolution, you have to underline it was a middle class revolution, but it was different from American Revolution in that in American Revolution the role of the lower class was muted, but in French Revolution the role of the middle class would be much more articulate. मतलब जो lower class का role है वो इसमें यानी अमेरिकन रेवोल्यूशन में, सॉरी फ्रेंच रेवोल्यूशन में अमेरिकन रेवोल्यूशन की तुलना में ज्यादा क्लियर होगा, ज्यादा एग्रेसिव होगा, ज्यादा आर्टिकुलेट होगा, और इस लोअर क्लास के रोल आने से रेवोल्यूशन में चेंज हो जाएगा. मैं आपको उस समय मेंटली अलर्ट रहने के लिए बोलूंगा. यू हैव टू कैच अप द आइडिया. जहां तुम नहीं समझोगे, आई एम हियर टू हेल्प यू, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल. Just 1 minute. Just 1 minute. Just 1 minute. A factors responsible for the French Revolution. In yesterday's class, I have made you clear कि background behind French Revolution. मतलब how was it inspired from American Revolution? So in yesterday's class I have already made you clear. A background, or even you can use the term causage, you find here political, economic, social, and ideological. Then question arises, immediate factor. Immediate factor, you will find here the immediate factor is so that it should be visible, or rather here you can see it should be visible. Immediate factor is economic crisis in France. Economic crisis in France and convening or summoning of the session of States General. My students, I am just, you can say, helping you digesting all the things. You will be crystal clear. First of all, let us discuss about the causes. I will discuss each and every aspect, and then I myself will ask you, are you comfortable or not? A pehla political factor. In political factor, I have told you the decline of, you can say dichotomy in, or you can say the basic contradiction in the policy of the French monarchy. There was a time, once upon a time, the French monarch used to be much powerful. Louis XIV. He was not simply a dominant figure in France, but rather he remained dominant even in European politics.
So he was having the will power as well as the military power both to enforce his will, enforce his, his policy. मतलब कि लुई 14वां कभी फ्रांस का ही नहीं बल्कि यूरोप का एक डोमिनेंट फिगर हुआ करता था जो अपनी नीति को कड़ाई से लागू करवा सकता था. But his successor was, he ruled up to 1715. His successor was Louis XV, who ruled between 1715 to 1774, and Louis XVI, who came to power in 1774 and remained there up to 1789. So my students, here I have to inform you, in the long reigning period of Louis XV was basically an era of misgovernance. मतलब कि फ्रेंच मोनार्क पावरफुल नहीं है, वो वीक हो चुका है, उसमें कॉम्पिटेंस नहीं है, योग्यता नहीं है. तो पहले होता क्या था कि इस तरह के जो कॉम्पिटेंट रूलर होते थे वो अपने पावर से भी कॉम्प्रोमाइज कर जाते थे, कुछ पावर को छोड़ देते थे. लुइस 15 तो बहुत ही एक वीक किंग ही था और उसके समय काफी मिस गवर्नेंस भी हुआ. इतना तक कि मैंने कल आपको बताया था कि जब लुइस 15 का डेथ हुआ था एंड ही वाज जस्ट वैकेटिंग हिज पैलेस, इन द मीन टाइम some naughty person and some hooligan just wrote on the palace in his own handwriting, it's too late. मतलब ये अब यह रेंट चढ़ने के लिए है, पैलेस खाली हो चुका है. अब लुइस 16 को जब रूलर बनाया गया तो he was not having any idea of governance, not any idea of politics. He was not even mentally prepared for being a king. He was in forest doing some work. But in the meantime, he was suddenly called, you have to perform your coronation as the next king of France. So some critics says he was a bit nervous because he was not ready for taking this responsibility. मतलब वो लुइस 16 था, वो इतना इनकॉम्पिटेंट था कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शुरू में लेने के लिए तैयार नहीं था. जब एक बार किंग हो गया तो अपने मोनार्की का जो ऑटोक्रेसी थी, माने ऑटोक्रेटिक नेचर ऑफ द मोनार्की थी, वो ऑटोक्रेटिक नेचर ऑफ मोनार्की को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था बिल्कुल कि नो, हमें अपने पावर को मेंटेन करना है. तो ये डायकोटोमी कब तक चलती? आप में कॉम्पिटेंस नहीं है, आप में पावर नहीं है, लेकिन आप अपने उस ऑटोक्रेटिक नेचर को नहीं छोड़ना चाहते हो. तो हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? So that will create some sort of problem. I think in this cert, Mr. Student may not have the problem. Okay. So why visibility is there? A bit blurred. Okay. Okay. Now you are observing here the economic. You find the term like economic. In economic study, I have told you, in fact, if there is the long festering poverty, the people are normally used to this situation. Suppose you say that they had remained there for a long time in the stage of acute poverty. So even they didn't develop a sense of resistance against the situation, and they used to make a compromise with the situation. But as C.J. Davis, a scholar, he emphasized the very ripe condition for a revolution is that there appears a short time of decline and recession after a long time of prosperity. In Hindi, I have told you yesterday, अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी बहुत जहरीली होती है. तो 1730s से 1770s तक फ्रांस की, चाहे 1730 या 1740s में फ्रेंच इकोनॉमी काफी एक्सपेंड किया था, एग्रीकल्चर भी और इंडस्ट्री भी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा था, लोगों में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आई थी,
लेकिन 1770s एंड 1780s में, क्योंकि अमेरिका 1770s में इंडिपेंडेंट हो गया 1780s तक, 83 तक, तो अमेरिका से जो पहले प्रेशियस मेटल यूरोप में आते थे वो आने बंद हो गए, तो पूरे यूरोप में रिसेशन आया, जिसमें सबसे अधिक इंपैक्ट फ्रांस पर पड़ा, इसलिए क्योंकि वो एक लंबी प्रॉस्पेरिटी के टाइम को देख चुका था। In the meantime, in 1788 and 1789, in consecutive year, there was incidents like crop failure. So it added further fuel to the fire of discontentment. अब चूंकि एक लंबे समय, अब चूंकि consecutive year जब crop failure हुआ, तो इसने फिर और भी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया लोगों के डिसकंटेंटमेंट में। तो 1789 में सिचुएशन उसके लिए बिल्कुल ही अनुकूल हो गया था। अब हम आते हैं सोशल पर। सोशल वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उस पर ध्यान करना। फ्रेंच सोसाइटी प्रेजेंटेड अ सिनेरियो ऑफ अ डिवाइडेड सोसाइटी। अब व्हाट इज द डिवाइडेड सोसाइटी? तो सोसाइटी वर डिवाइडेड अमॉन्ग 3 स्टेट्स। यू फाइंड दैट द टर्म स्टेट्स, यू माइट हैव फाइंड दैट टर्म स्टेट्स, यू हैव फाइंड द टर्म फर्स्ट स्टेट। First state stood for whom? First state stood for the clergy class. The clergy class belonged to the first state. Then comes the term second state. Who belonged to second state, my student? Second state means aristocratic class. Aristocratic class. And that is कुलीन, जिसको कुलीन बोलते हो, वो सेकेंड स्टेट से जुड़ा हुआ था। और थर्ड स्टेट वॉज नॉट अ मोनोलिथिक ग्रुप। थर्ड स्टेट मिडल क्लास एंड लोअर क्लास। लोअर क्लास, थर्ड स्टेट में दोनों क्लास है, मिडिल क्लास भी और लोअर क्लास है। अब माय स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट बोथ बिलोंग टू प्रिविलेज सेक्शन। They belong to privileged section. They were lying at the upper state of society. They were immune from all sorts of taxes. They were paying no tax to the state. Apart from that, suppose you can say aristocratic class. This class was enjoying even the judicial power. Furthermore, the aristocratic class was exploiting the common peasantry and taking the various sorts of dues from the common peasantry. Likewise, the clergy class, so they used to impose the religious tax, that is tithe, on the common people. तो हमें ये कहना है कि जो प्रिस्ट क्लास है और एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, दोनों के बहुत सारे प्रिविलेजेस थे, विशेषाधिकार थे। एक तो गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देते थे, ऊपर उल्टा लोगों पर ही टैक्स लगाते थे, अपने ढंग से लोगों से वसूल करते थे। टाइल नामक टैक्स स्टेट को जाता था, तो टाइथ नामक टैक्स चर्च को जाता था। तो ये अब इनके जीवन में केवल प्रिविलेजेस ही प्रिविलेजेस थे। अब तुम आते हो थर्ड स्टेट पर। थर्ड स्टेट में दो ग्रुप है, एक है मिडिल क्लास एंड सेकेंड वन इज द लोअर क्लास। माय स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फ्रेंच मिडिल क्लास वाज मच बेटर देन इट्स काउंटर पार्ट इन अदर कंट्रीज एक्सेप्ट ब्रिटेन। British middle class was definitely, you can say, powerful was there, but except Britain, in nowhere in Europe, the middle class was so economically well off, so economically successful as you find in case of France. So the French middle class was in much better condition than its counterpart in other parts of Europe. But it created a situation for the revolution because the middle class developed a sense of discontentment against the system. Economically, middle class is so well off, but why did it not given the proper social rights? And clergy class as well as the aristocratic class were enjoying so much privileges, but the middle class is deprived from all the essential rights. तो बेसिकली अगर आप गौर करके देखोगे तो मिडिल क्लास को कोई ऐसा नहीं था कि क्लर्जी क्लास एरिस्टोक्रेटिक क्लास टैक्स वैक्स लेते थे तो उनको कोई परेशानी नहीं थी। उनको जेलसी थी इस सिचुएशन से, क्योंकि बहुत सारे जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो पुअर हो चुके थे। अब कभी लैंडलॉर्ड रहे होंगे, लेकिन अब मैनर सिस्टम टूट चुका है, आप तो जानते हो, तो बहुतों का इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो चुका है। और ताजुब की बात यह है कि मिडिल क्लास में बहुत सारे मनी लेंडर्स भी है, मर्चेंट्स हैं,
इंडस्ट्री के मालिक हैं, तो इंडस्ट्री अभी इंडस्ट्रियल वर्ल्ड से नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो रहा है। बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, तो वो जो ऐसा भी है कि एरिस्टोक्रेटिक क्लास के कुछ लोग उन्हीं से लोन लेकर अपना खर्च चला रहे हैं, कर्ज लेकर, लोन लेकर, लेकिन फिर भी वो एरिस्टोक्रेट है, मिडिल क्लास है। तो मिडिल क्लास में एक सेंस ऑफ जेलसी भी है कि यार ये इतना इंजॉय कर रहा है, इतने सारे राइट्स को इंजॉय कर रहा है, और हम लोग तो इनके सामने बिल्कुल ही सोशली डिप्राइव्ड हैं। तो ये बात है। तो किसी क्रिटिक ने बिल्कुल सही कहा है, एंड देयर स्टेटमेंट इज कि द फ्रेंच मिडिल क्लास developed a sense of class consciousness and its economic condition was much better than its counterpart in other regions, but this phenomena made the French middle class more revolutionary, और उल्टा इसको और रेवोल्यूशनरी बना दिया, क्योंकि इसको अपने सोशल कंडीशन से, और यू फाइंड सेंटेंस इन माय स्टडी मटेरियल कि इन फ्रांस यू विल फाइंड द इंटेंस डिवीजन बिटवीन इकोनॉमिकली effective class and socially effective class. This is the statement, and maybe this statement might have created confusion for you. So here I am clarifying the statement. There was the sharp contrast between, or sharp contradiction between, economically effective class and socially effective class. The economic effective class was the middle class, and socially effective class was the aristocratic class and the clergy class. तो मतलब जो सोशली जिनको ज्यादा पावर था वो इकोनॉमिकली उतने बढ़िया नहीं थे, और जो इकोनॉमिकली पावरफुल थे वो सोशली उनका पोजीशन अच्छा नहीं था। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा था वो रिवॉल्यूशन के लिए इन्वायरमेंट को प्रिपेयर कर रहा था। अब यू फाइंड हियर द टर्म लोअर क्लास। द लोअर क्लास वाज बर्डन विद द वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स एंड एग्जैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इट हैड टू पे टू द स्टेट द टैक्स and to clergy class as tithe. Apart from that, the lower class had to, in lower class you will find the peasants and artisans, peasants and artisans. So they were paying up even the landlords, local lords, you can say peasants, and giving the different sorts of gifts to the lords. So peasants were burdened with various types of tax, and their economic condition was really dismal. But lower class was not having its own leadership, so lower class was looking to the middle class for leadership. क्योंकि जो निम्न वर्ग है उसके पास अपना कोई नेतृत्व नहीं था, लीडरशिप नहीं था, तो लीडरशिप के लिए वह मिडिल क्लास की तरफ देख रहा था। तो सोशल फैक्टर इन माय स्टूडेंट, दिस इज द सोशल फैक्टर। Now I am coming to, you can say, ideological factor. What is ideological factor here? I have to make you clear. देखो, ideological factor. My students, you are well aware of the enlightened thinkers. For example, you are familiar with Voltaire, Montesquieu, Diderot, except you can say John Locke. John Locke was from Britain, but Voltaire, Diderot, Rousseau, all were from France. So these were the enlightened thinkers. So the enlightened thinkers prepared the ideological basis for the revolution. Ideological basis for the revolution, In what way? So I have used the term. It was these scholars who, through their ideas, through propounding their ideas, they could draw the attention of the people towards the political, economic and social malaise. मतलब ये जो विचारक थे, थिंकर्स थे, उन्होंने लोगों का ध्यान उस समय के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दुरावस्था यानी एनार्की, यानी अपेथी, यानी मैलेज की तरफ खींचा। ओके, this was the first one. Second one, you find that they coined certain terms. Certain revolutionary terms. जैसे आज तुम कहो revolutionary terms क्या है, तो social justice, सबका साथ सबका विकास। तो ये सब क्या है? ये सब एक फ्रेज है, और फ्रेज क्या मांगते हैं? ये फ्रेज मांगते हैं, ये एक तरह से रेवोल्यूशनरी टर्म्स है कि भाई हम एक समाज में चेंज लाएंगे, सिस्टम में चेंज लाएंगे। उस समय उन लोगों ने कुछ टर्म्स को क्वाइन किया। रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन, दे हैव टू क्वाइन द टर्म्स।
होमलैंड और मदरलैंड, मातृभूमि, उसके लिए पैत्रेई शब्द का, वो फ्रेंच टर्म पैत्रेई था। सिटीजन, सिटीजन नागरिक, मतलब दे हैव क्वाइंट सर्टेन रेवोल्यूशनरी टर्म्स लाइक rule of law, like citizen, like motherland. So these terms were the revolutionary. So they, through inventing and propounding certain phrases, they made the people to think over the resistance against the system. And third one was their ideas could spread just like the forest fire among intellectuals with the support of क्लब्स एंड सैलून्स। अब जैसे उसमें कॉफी हाउसेस होते थे, क्लब्स होते थे, सैलून भी एक तरह से वो कॉफी हाउस या क्लब की तरह ही होता था। उसको सैलून मतलब हेयर कट सैलून नहीं, दैट इज कॉल्ड सैलून। तो ये होते थे, उसमें वो बैठते थे। अब कॉफी हाउस में लोग क्या करते, कॉफी कम पीते और आपस में बहस ज्यादा करते। तो दे वर ऑर्गेनाइजिंग द डिबेट्स। सो थ्रू डिबेट्स यू कैन से कि आइडियाज वेर फास्ट स्प्रेडिंग, ideas were fast spreading through debates. So in this way, through debates, they were just spreading their ideas. So in this way, they helped the revolution. They helped the revolution means there is the statement, you find the statement, the all in, even in my, actually this was in question itself, so I have just borrowed the statement from there, and I am just drawing your attention to the statement. All encompassing event like French Revolution could never occur in the state of or in the condition of an intellectual vacuum. अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, मैं इसको क्लियर करता हूं कि इसमें कहा गया है कि फ्रांस की क्रांति जैसी, जो ऑल इनकम्पासिंग, देयर इज द टर्म इन हिंदी कि फ्रांस की क्रांति जैसी, मतलब वो टर्म ऑल इनकम्पासिंग का आई एम नॉट फाइंडिंग हिंदी टर्म प्रेजेंटली, सो आई एम जस्ट मैनेजिंग दिस सेंटेंस कि फ्रांस की क्रांति जैसी महत्वपूर्ण घटना कभी भी बौद्धिक शून्य में, इंटेलेक्चुअल वैक्यूम, बौद्धिक शून्य में घटित नहीं हो सकती। मतलब क्रांति होने के लिए विचारधारा का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि विचारधारा जो होती है, आइडियोलॉजी होती है, वो क्रांति को लेजिटिमाइज करती है। एक बात मैं बताता हूं, मैं कंक्रीट एग्जांपल देता हूं। अब टुडे यू नो, इवन टुडे द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 was a very disputed issue in Indian historiography, you know. Actually, it is true कि अब now historians have come to the conclusion कि definitely it was not a Sipai mutiny. It was a popular upsurge, but it was not, yet it was not the national war of independence. Why? So something was missing. What is something missing? So my students, in Great Revolt of 1857, you find that something is missing. So something is missing for the fact, because you know, there was no revolutionary at that time, no revolutionary could use the revolutionary, sorry, no rebel like Nana Sahab, Jhansi Ki Rani, you know, Tatya Tope, Veer Kunwar Singh, whatever may be. They didn't use ideological backing. They simply fought. Up Jhansi Ki Rani Lakshmibai, she has given the statement कि मेरी झांसी नहीं दूंगी. Or suppose you can say, if she might have used the statement कि हमारा हिंदुस्तान हम नहीं देंगे, it could have been converted into a revolution. And it was definitely a national war of independence there. तो आइडियोलॉजी जो होती है वह लेजिटिमाइज करती है किसी भी रेवोल्यूशन को. My students, I am a bit curious because you people are sitting before me. I just realized, are you conceptually clear with this statement or not? जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है वो आप समझ पाए हो या नहीं? प्लीज आप हिंट करो. I am assigning, giving the assignment to Ankur to enlist your reaction. Please be fast.
Is this point clear? तो हिंदी में तो बोल ही देता हूं मैं। इंग्लिश का मतलब, माय स्टूडेंट्स, अब मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूं कि आप इंग्लिश कहते हो, मैं हर बात लगभग आपको हिंदी में ही बोल देता हूं। लेकिन अगर आप इंग्लिश का मतलब यह समझते हो कि मैं पूरा लेक्चर हिंदी में दूं और अंग्रेजी में ना बोलूं, तो दो तरह की समस्याएं आएंगी। एक कि हमारे जो इंग्लिश मीडियम के प्योर स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑन दिस channel, as I have been informed, so they are just associated with purely English medium. लेकिन but they are not making any point of objection if I am using Hindi as well, because I am using Hindi with their due permission. First thing. Second one thing is even you will be lost. Why? अब suppose you find difficulty possibly in conversation, English conversation, but you have to use English at least in writing. And if you are English medium, it means that your writing is surely going to be in English. Otherwise, there is no use of sitting in this class, So I will just use the purely Hindi, so you will lack in sufficient vocabulary, sentence formation, etc. And that will create a problem in the examination hall. तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसीलिए आपके क्लास में थोड़ा मुझे टाइम ज्यादा लग जाता है, नंबर ऑफ क्लासेस भी थोड़ा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं हर चीजों को इंग्लिश में भी बोलता हूं और हिंदी में भी बोलता हूं। और मेरा एक ही इंटरेस्ट इसमें है कि मेरा कोई भी स्टूडेंट यहां पर यह ना बोले कि मैं नहीं समझ पाया। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंग्लिश का मतलब यह मत समझना कि मैं केवल हिंदी ही यूज करूंगा, मैं दोनों लैंग्वेज को यूज करूंगा और यथासंभव हिंदी। लेकिन अगर टिल्ट तो हमारा इंग्लिश की तरफ ही होगा, आप तो समझ ही सकते हो, क्योंकि मजबूरी भी है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे देखो नॉर्मली क्या होता है, इसको मैं हिंदी में बोल देता हूं क्योंकि शायद आपको दिक्कत हुई। जैसे जो विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी होती है, वो किसी भी रेवोल्यूशन को वैधता दिलाती है। जैसे हमने 1857 का रिवोल्ट कहा, तो 1857 के रिवोल्ट में, पूरे रिवोल्ट के दरमियान कोई भी जो रेबेल था वो हिंदुस्तान जिंदाबाद या हम सब एक हैं या ब्रिटिश को हिंदुस्तान से हम सबको मिलके खदेड़ना है, एक नया हिंदुस्तान बनाना है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। सब अपने इंटरेस्ट के लिए जहां तहां लड़ रहे थे। तो हमारे 1857 के रिवोल्ट में सब कुछ था। वहां पर वोल्टेयर की कमी थी, रूसो की कमी थी, दिदरू की कमी थी, तो इन सब की कमी थी। अब वोल्टेयर ने मेड एन अटैक ओवर द, यू कैन से, autocratic nature of monarchy, the superstition of the church, and the selfish interest of the aristocracy. So in this way, he was just going to catch up the attention of the scholars, other scholars and intellectuals. तो जैसे रूसो है, तो उसने राजतंत्र की निरंकुशता पर चोट की, चर्च पर प्रहार किया, या रूसो ने कहा मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। He has given the concept general will, जो संप्रभुता है, sovereign will is the general will is the sovereign will, जो संप्रभुता है वो जन सामान्य में निवास करती है। रूसो ने ये बात कही। तो क्या हुआ, उसी तरह 1857 के रिवोल्ट में हमारे भी कोई अगर रिवोल्यूशनरी होता और वह भी अगर यह बोलता, जैसे झांसी की रानी ने कहा कि मेरी झांसी नहीं दूंगी, अब उसने अगर स्टेटमेंट दिया होता मेरा हिंदुस्तान नहीं दूंगी, मेरा नहीं हमारा हिंदुस्तान नहीं दूंगी, तो फिर वो क्या हो जाता है, नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बन जाता वो रिवोल्ट। अब जैसे देखो, एक मैंने बुक पढ़ी थी व्हिच आई हैव टू शेयर विथ यू, यू पीपल मे हियर मी। एक मैंने राजमोहन गांधी एक ऑथर है, वो महात्मा गांधी के ग्रैंडसन है। तो उन्होंने एक बुक लिखी है 1857 and 1861, the 1857 a tale of the two events में तुमने कंपेयर किया है कि आपको हमने अमेरिकन सिविल वॉर पढ़ाया है, आपको तो याद है। अमेरिकन सिविल वॉर 1861 से 1865 के बीच घटित हुआ था, आपको पता है। और 1857 में तो दोनों लगभग थोड़ा बहुत अंतर के साथ दोनों
एक ही साथ हुआ है। तो राजमोहन गांधी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि देखो हमारे 1857 के रिवोल्ट में सारे लीडर्स थे, वहां पर एक अब्राहम लिंकन अगर होता तो नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बन जाता, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कितनी चालाकी की थी याद है, लड़ा था स्लेव के मुद्दे पर और बड़ी चालाकी से फेडरेशन के मुद्दे में उसको बदल दिया। जब देखा कि भाई अब साउदर्न स्टेट्स ने सेसेशन की घोषणा कर दी है, तो उसने पूरी अपना पेडागोगी ही चेंज कर दी। उसने कहा कि देखिए हम कहां कर रहे हैं स्लेव, आप स्लेव रखना चाहते हो तो रखिए, लेकिन आप फेडरेशन से अलग नहीं हो सकते, ये राइट आपको नहीं है। अगर स्टेट इंडिस्ट्रक्टेबल है, स्टेट को अगर नहीं ब्रेक किया जा सकता है तो फिर यूनियन को भी ब्रेक नहीं किया जा सकता है। तो स्टेट इंडिस्ट्रक्टेबल है तो फेडरेशन भी इंडिस्ट्रक्टेबल है। तो उसने कैसे अपने पूरे नैरेटिव को बदल दिया, और उसी तरह 1857 के रिवोल्ट में ये सब अपने इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट बना के चला देते, तो वह एक अलग तरह का नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बन जाता। सो माय स्टूडेंट्स, जब तक आपको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिलता है तो रेवोल्यूशन नहीं होता है, और यही चीज फ्रेंच रेवोल्यूशन को 1857 के रिवोल्ट से अलग कर देता है। लेकिन हाँ, ये जो आइडियोलॉजिकल फैक्टर है, जो मैंने जितने भी थिंकर्स के बारे में कहे, दे आर हैविंग वन लिमिटेशन, मतलब वी कैन नॉट अंडरलाइन द रोल ऑफ thinkers in dissociation with the material factor of the time। जैसे हमने कहा एक कारण पॉलिटिकल है, एक इकोनॉमिक है, एक सोशल है, तो ये कारण सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है। ये कारण आइडियोलॉजी तब इफेक्टिव होती है जब उसके लिए सिचुएशन होता है। अब कैन यू इमेजिन दैट द थिंकर्स हैड कम 1.5 decade earlier, but revolution occurred 1.5 decade later. Why? So thinkers are just going to, in 18th you can say Jean-Jacques Rousseau, they died broken hearted. No one was to take care of them, Voltaire, Diderot. But when the situation was ripe for revolution, so these scholars suddenly gain in prestige. They caught up their ideas, caught up the attention of the people, otherwise not. तो जो विचारधारा होती है वो तब मान्य होती है जब उसके लिए परिस्थितियां निर्मित होती है। अब आकर परिस्थितियां, इस सिचुएशन उसके लिए बन चुका है। अब एक बार मैं बताता हूं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने झुंझलाकर कहा था, एक गुस्सा खाकर नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, इफ देयर वेयर नो रूसो नो रेवोल्यूशन। अगर रूसो नहीं होता तो क्रांति नहीं होती। मैंने उसका मानना था कि रूसो की विचारधारा ने क्रांति कर दी। तो वही नीचे मैंने दिया हुआ है कि देखो भाई, ये सभी मिडिल क्लास थिंकर्स थे। कौन थे? मिडिल क्लास थिंकर्स थे। और जो मिडिल क्लास थिंकर्स है वो रेवोल्यूशन नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि भाई रेवोल्यूशन बड़ा जहमत का काम है, बहुत उथल पुथल होते हैं, और मिडिल क्लास के पास अपनी प्रॉपर्टी होती है तो बहुत रेडिकल वो नहीं हो पाता है। उसको लगता है रेवोल्यूशन में पता नहीं प्रॉपर्टी हमारी कहीं फॉरफिटेड ना हो जाए, किस तरह का गवर्नमेंट आ जाए, क्या उथल पुथल हो जाए। तो ये सब जितने थिंकर्स थे मिडिल क्लास थिंकर्स थे, तो ये चाहते थे कि थ्रू मेकिंग एन अटैक ओवर द सिस्टम, थ्रू क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, दे जस्ट ट्राई टू मेक देयर ग्रीवांसेस redressed and they tried some sort of improvement, some sort of redressal of their grievances. They could have even supported the monarchy if the monarchy was ready to make essential reforms for redressal of their grievances. They could have never, you can say, favored the revolution. मैंने वोल्टेयर के बारे में एक कहावत है, मैं आपको बताना चाहता। उसके बारे में कहा जाता है कि जब अपने ड्राइंग रूम में अपने नौकरों के साथ वो इनलाइटेनमेंट प्रबोधन के विचारों पर जब डिस्कशन करने वाला होता था तो अपने नौकरों को छुट्टी दे देता था, उसको लीव दे देता था। क्यों? क्योंकि कहीं हमारे सर्वेंट्स हमारे इस रेडिकल विचारों को सुन ना ले और रेवोल्यूशन ना कर बैठे। मैंने रेवोल्यूशन से डरता था ये मिडिल क्लास थिंकर्स। तो ऐसा नहीं कि मिडिल रेवोल्यूशन चाहता था, लेकिन रेवोल्यूशनरीज ने उनका इस्तेमाल किया अपने इंटरेस्ट के लिए। रेवोल्यूशनरीज को क्यों? इन ऑर्डर टू लेजिटिमाइज देयर सिचुएशन। अब जैसे कहोगे लेजिटिमाइज, ये सब देखो कुछ सर्टेन टर्म्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल टर्म्स होते हैं। मैं मानता हूं आपको कि ये टर्म्स जो लोग नहीं समझते हैं तो अकुलाहट भी होती है और फिर विषय नहीं समझ में आता है, लेकिन मैं यहां हेल्प करने के लिए हूं, आपको चिंता की बात नहीं। और ये सब टर्म्स आप समझ जाओगे तो अदर सब्जेक्ट्स में भी आपको हेल्प होगा।
जैसे देखो, आप ऐसे ही बात जानो, जैसे लोग क्या होता है, आइडियोलॉजी को अपने पोजीशन को लेजिटिमाइज करने के लिए यूज करते हैं। अब सपोज करो कि तुमने कहीं स्टेटमेंट दे दिया, अब कहीं सत्य बोल गए तुम, ओके, अब सत्य बोल गए, उस कारण से परेशानी आ गई, कुछ लोग तुमसे नाराज हो गए, कुछ लोग तुमसे पूछ रहे हैं तुमको बोलने की जरूरत क्या थी, तो तुम समझ तब तो तुम बहुत मुश्किलें पड़ जाओगे। तुम लोग कहोगे, मुझे लोग गलत समझेंगे कि भाई इसने कोई ऐसे सत्य को रिवील करके और सोसाइटी में कमोशन क्रिएट कर दिया। तुम तुरंत जवाब देते हो कि क्यों ना बोलूं, मैं गांधी बाबा का भक्त हूं और गांधी बाबा ने कहा हुआ है सदा सत्य बोलो, इसलिए मैं सदा सत्य बोलना चाहता हूं। अब तुम सत्य गांधी जी के प्रभाव से नहीं बोले, तुम गांधी जी का नाम लेके अपने पोजीशन को लेजिटिमाइज कर रहे हो। यू आर लेजिटिमाइजिंग योर ओन पोजीशन through invoking Gandhi's name. You are using Gandhi for your legitimizing your own position. तो वही उस समय के रेवोल्यूशनरीज ने किया कि इनके विचारों को वो इन्वोक करते थे। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। हम स्वतंत्र पैदा हुए हैं, हमें स्वतंत्र रहना, ये सब उस सब इंटेलेक्चुअल्स का उन्होंने तरह से यूज किया है। इसमें से कोई भी इंटेलेक्चुअल तुमने गौर किया, जैसे आप यूएसए में देखो, मैंने नाम लिया है, वहां पर बेंजामिन फ्रैंकलिन है, पैट्रिक हेनरी है, ये सब जो वहां के अमेरिकन जो लीडर्स थे, वो थिंकर्स भी थे और लीडर्स भी थे, उन्होंने रिवॉल्यूशन को भी लीड किया। ये सब तो रिवॉल्यूशन से पहले ही मर चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि रूसो ड्यूरिंग हिज ओन एज ही वाज ट्रीटेड एज ए मैडमैन, एज ए सिजोफ्रेनिक, ही बिकेम सिजोफ्रेनिक, माने एक मनोवैज्ञानिक बीमारी से ग्रस्त हो गया। उसके दोस्त भी उस पर पत्थर फेंकते थे, बोलते थे कि भाई ये तो आप पागल है, ये बोलते थे। और मैं आपको बताऊं कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और डेमोक्रेसी का युग आया, तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था रूसो। देखो, पीछे का रिवाइज करके कनेक्टिविटी को तुम्हें बना के रखना है, मैं भूलने नहीं दूंगा। तो रूसो ने तो जनरल विल की धारणा है, मैंने बताया, डेमोक्रेसी का सपोर्टर है, फादर ऑफ डेमोक्रेसी भी है, तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, जब डेमोक्रेसी का युग आया, तब रूसो महान हो गया, रूसो बिकेम ग्रेट। तो हम यहां पर चाहे तो नेपोलियन से डिसएग्री भी कर सकते हैं। नेपोलियन कहेगा इफ देयर वेयर नो रूसो नो रिवॉल्यूशन, और हम कह सकते हैं इफ देयर वेयर नो रिवॉल्यूशन नो रूसो। क्यों? तो रूसो पैदा होता, थिंकर रहता, लेकिन अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं होता तो रूसो इतिहास के पन्नों में दब के रह जाता, गुमनाम ऑथर की तरह, कोई उसे जानता तक नहीं। रिवॉल्यूशन ने रूसो को महान बना दिया। Here I have to, माने it was revolution which made Rousseau great। तो मैं स्टूडेंट्स यहां तक अगर आप समझ गए होगे तब मैं इमीडिएट फैक्टर आपको बता दूंगा। इफ यू आर क्लियर अप टू दिस पॉइंट, देन आई विल जस्ट कैरी यू टू द इमीडिएट फैक्टर। सो प्लीज गिव मी द हिंट, मिस्टर अंकुर, गिव द हिंट टू द अंकुर। और इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, मिस्टर अंकुर, एनी क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ बोलो। Now question is what is schizophrenia? सिजोफ्रेनिया ये साइकोलॉजिकल डिजीज, उसमें लोगों को अजीब अजीब ख्यालात आते हैं, अपने दोस्त भी दुश्मन लगते हैं, हर बात पर शक होती है। एक गिलास पानी लोगे तो लगे अरे ये पानी नहीं है, पता नहीं ब्लड तो नहीं है, मतलब वो एक साइकोलॉजिकल मूवमेंट होता है, वो बीमारी होती है, बहुत बुरी बीमारी होती है। रूसो उसी से ग्रस्त हो गया था। Bhagat Singh पूछ रहे हैं that by the time of 7 revolt there was no thinker like this. नो, वो नहीं हो, वैसा कोई थिंकर आया नहीं सामने। अगर आता तो अवध का बेगम ही हो जाती, झांसी की रानी ही बन जाती, तात्या टोपे ही हो जाते, तो फिर क्या दिक्कत थी? But sir, is crop failure also the immediate cause of revolution? हाँ, यस, डेफिनेटली यू कैन से, लेकिन जो क्रॉप फेलियर हुआ हर्ष, तो इट क्रिएटेड डिसकंटेंटमेंट अमंग द पीपल, सो दैट बिकेम अ फैक्टर बिहाइंड द रेवोल्यूशन। Sir, in American Revolution you didn't tell us about their exact civilization. There? Is that easy? Aztec. Well, Aztec civilization was in Latin America, you know. And actually, my friends, in Latin America, in America, in American continent, actually, Europeans are making the claim. Are you mentally alert or not? I mean, who has asked this question? Ayush. Ayush, even you and even other people, other students have to hear my speech. In fact, when the American continent was conquered by Europeans, so later European conquerors and adventurers, so they made a claim that the
American continent was uncivilized and Europeans made them the civilized. And this claim was almost given to Africans always also. Even they were making the claim to all the Oriental world, including Asia. They were making such a statement. So actually, later scholars proved that no. The Maya civilization in Latin America had appeared even before your Greek civilization in Europe. And when Europeans knocked at the door of America, when Columbus and just you can say discovered it, and you can say Pizarro and different adventurers just went to America, at that time two civilizations existed there. One was Inca civilization and Aztec civilization. But it was the European conquerors who conquered the Latin America, so they destroyed the civilization Aztec and Inca. So it was the colonizers themselves who destroyed the Inca civilization and Aztec civilization. So this is the point here at that time. Many पूछें what is storming of Bastille? मीनी एक्चुअली पहले मैं आपको रेवोल्यूशन करा रहा हूं कॉजेज. अब बेस्टाइल क्या है ये तो आगे इंसिडेंट होगा ना, तो मैंने तो आगे आप लोगों को प्रोहिबिट किया है कि आगे का क्वेश्चन प्लीज मत पूछा करिए, आप वेट करिए जब मैं उस एरिया को क्रॉस कर जाऊं. और फिर जैसे अभी आयुष ने पूछा एजटेक सिविलाइजेशन के बारे में, तो हमने उस समय उसका रेफरेंस नहीं दिया था, तो हमने आपको समझा दिया. अब बास्टिले का जो डिक्लाइन है तो ऑलरेडी मैं पढ़ाने वाला हूं, तो मिनी आप थोड़ा पेशेंस रखिए उसके लिए. Sir, and sir, also you not describe about Maya civilization. Yes, Maya civilization was the earliest civilization, that was possibly in more than 1500 BC. Its civilization came into. Actually, मतलब मुझे उसका रेफरेंस दे देना चाहिए था, बट हो सकता है फ्लो में हम निकल गए और आपको माया, इंका और एज़टेक सिविलाइजेशन के बारे में नहीं बताया. माया सिविलाइजेशन बहुत पहले आया था, लगभग 1500 BC और उससे भी पहले. और जो एज़टेक और इंका है वो कॉन्टेम्पररी था, वो आया था 15th सेंचुरी में, 15th-16th सेंचुरी में था, जिस समय यूरोपियंस ने वहां पर नॉक किया था, उसी समय सिविलाइजेशन आया. अब माय स्टूडेंट्स प्लीज आंसर माय वन क्वेश्चन. Up to ideological factor, are you clear? Can I move for the immediate factor? Please inform me. Please inform me, be fast. Okay है? अब I'm talking about the immediate factor, right? Now, what is the immediate factor, Actually, American economy, it was suffering from, French economy was suffering from acute deficiency. मतलब जो फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन था वो बहुत बुरा हो रहा था. There was already the legacy of a long economic crisis in France, because when the Louis XIV was himself a great emperor of France, but he was very warmongering. He just organized or carried or fought the 4 major wars in Europe during his tenure. So due to his extravagant war, the treasury was exhausted. In the meantime, later at the time of Louis XV, the French government participated in 7 Years' War. I have mentioned earlier, So due to the participation in this 7 Years' War, the treasury was further depleted. In the meantime, later, even France participated in American Revolution as well on the behalf of American colonies. So there was also the military engagement of France in this affair. So it proved costly for France, and it brought France to the point of almost bankruptcy.
French economy just came, you can say just French economy was just, you can say, sat on its knees. अब सवाल है कि आज की तारीख में इसको आप कहते हो फिस्कल डेफिसिट। हुआ था क्या कि जो लुई 14 था तो बहुत ग्रेट किंग, लेकिन उसने चार ऐसे वॉर लड़े जिससे फ्रांस का पूरा ट्रेजरी ही खाली हो गया। और फिर उसके बाद फ्रांस 7 इयर्स वॉर में हिस्सा ले लिया जिसमें हार गया ब्रिटेन के हाथों। उसकी इकोनॉमी और बदहाल हो गई उसके खर्च के कारण, और उसके बाद वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी पार्टिसिपेट कर गया कॉलोनीज की तरफ से। तो उसका एक तरह से पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो बैंकरप्सी, मतलब क्या कर सकते हो, दिवालियेपन के कगार पर आ गई। अब सवाल उठता है कि ये कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटा जाए। तो फ्रेंच मोनार्क लुई 16 he was not having any alternative to find out which can uplift the French economy। मतलब फ्रेंच इकोनॉमी कैसे क्राइसिस से निकले ये लुई 16 को समझ में नहीं आ रहा था। अंत में उसने एक प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जिसका नाम था कोलोन। तो कोलोन सजेस्टेड हिम कि देयर इज द ओनली वे आउट कि प्लीज एक्सपैंड द टैक्स नेट, बिकॉज एक्चुअली इन फ्रांस both the first state and the second state both were privileged and they were the untaxed class, means you cannot take the tax from these privileged classes. So the tax burden was totally on the head of the third state, and third state consisted of the clergy class and the aristocratic class both. Sorry, mistakenly I have told. Third state consisted of the middle class and the lower class both. So middle class was having the economic capacity to give more tax, but middle class was already jealous about the fact why we have to give tax further and why these classes are privileged, and lower class was in real sense burdened with the tax. Now lower class was quite unable to provide and to give any tax furthermore. मतलब कि अब देखो सिचुएशन क्या है कि कोलोन ने कहा किंग को कि एक ही रास्ता है कि आप टैक्स नेट को बढ़ा दीजिए, क्योंकि टैक्स जो पहले से केवल थर्ड स्टेट टैक्स दे रहा है अब वो नहीं दे सकता। मिडिल क्लास तो दे सकता है, परंतु इसलिए नहीं देगा कि उसको तो इस बात की जेलसी है, इस बात की ईर्ष्या है कि भाई अरिस्टोक्रेटिक क्लास और क्लर्जी क्लास तो चांदी काट रहे, कोई टैक्स नहीं दे रहे, हम क्यों देंगे अकेला। और लोअर क्लास का वास्तव में वैसी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है कि आप फर्दर कोई टैक्स दे सके। तो टैक्स नेट को बढ़ाने का मतलब है कि चलिए एरिस्टोक्रेटिक क्लास को ही राजी करिए कि वही लोग टैक्स दें कुछ, तो आप इकोनॉमिक बर्डन से फ्री हो जाएंगे। तो सवाल यह खड़ा होता है कि हु विल बिल्ड द कैट। अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कौन जाएगा एरिस्टोक्रेटिक क्लास से कहने, तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो 3 इंस्टीट्यूशन ऐसा था जहां पर एरिस्टोक्रेटिक क्लास से बात की जा सकती थी। एक इंस्टीट्यूशन था जिसका नाम था, 3 नहीं 2 ही मान लीजिए। एक था काउंसिल ऑफ नोटेबल्स, उसको बोलते थे। काउंसिल ऑफ नोटेबल्स में क्या था कि इसमें एरिस्टोक्रेटिक क्लास बैठता था और इससे किंग वार्ता कर सकता था अलग से। और दूसरा था स्टेट्स जनरल। स्टेट जनरल। अब जो स्टेट जनरल जो संस्था देख रहे हो ये था फ्रेंच पार्लियामेंट। हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू as you find the case of the British Parliament, so when the France was having its own parliament, the name of the parliament was States General. Okay, but problem was that in Britain the parliament, this institution progressed day by day and it became powerful later. But in case of France, the French monarch was so autocratic, the French monarch didn't allow the parliament to function independently. Its last session, you know, that occurred in 1624 at the time of Louis XIII.
मतलब 174 years back, sorry, not 70, 1614. The last session took place in 1614. मतलब इसका जो अंतिम सेशन हुआ था उस पार्लियामेंट का वो 1614 में हुआ था। लुइस 13 तब हुआ करता था। किसी बात पर मतभेद हुआ तो लुइस 13 का एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था रिशलू, उसने इसके सेशन को ही सस्पेंड कर दिया। एंड माय स्टूडेंट्स विल कम टू रियलाइज दैट it remained to be in the state of animated suspension since 1614, means कि since 174 years, मतलब 174 वर्षों से इसका कोई सेशन नहीं हुआ था। इट वॉज इन द स्टेट ऑफ एनिमेटेड सस्पेंशन। इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उसमें कोई उसके उस समय ग्रैंडफादर रहे होंगे या ग्रेट ग्रैंडफादर रहे होंगे। 114 वर्ष में तो 3 पीढ़ियां 3 जनरेशन गुजर गए होंगे, लेकिन इसका सेशन नहीं हुआ था। तो अब किंग, अगर कोई किंग दोबारा उसका सेशन बुलाता है तो इसका मतलब है कि वो सरेंडर कर गया, क्योंकि किसी किंग के लिए बड़ा ह्यूमिलिएटिंग था, बहुत अपमानजनक बात थी कि इसका सेशन बुलाए जिसका सेशन हमने इतना पहले बंद कर रखा है। तो पहले हुआ कि चलो काउंसिल ऑफ नोटेबल्स में हम एरिस्टोक्रेटिक क्लास से, यानी जो कुलीन वर्ग है, उससे बात करते हैं। कोलोन गया बड़ा ही शालीन शब्दों में, बड़े ही भद्र, बहुत ही जेंटल वर्ड्स में और जेंटलमैन लाइक मैनर में कहा आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा टैक्स दे देते तो हम इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ जाते। तो एरिस्टोक्रेटिक क्लास भड़क गए। उल्टा उन्होंने कहा कि देखिए, देखो एरिस्टोक्रेटिक क्लास का ग्रीवांसेस क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे लुइस 14 एक बड़ा ही पावरफुल किंग था, और आपको याद है कि जब फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हो रहा था, जब मोनार्की पावरफुल हो रही थी, तो मोनार्की पावरफुल होने के समय उसने मोनार्की ने क्या किया था, याद करिए। मोनार्की पावरफुल होते समय उसने और भी मतलब एरिस्टोक्रेटिक क्लास यानी सामंतों को, फ्यूडल लॉर्ड्स को दबाया था। तो लुइस 14 एक पावरफुल किंग था, तो उसने एरिस्टोक्रेटिक क्लास को दबाकर उसके बहुत सारे राइट छीन लिए थे। तो ये जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है उस अपने पुराने राइट्स में से कुछ राइट्स को लुइस 15 के समय फिर दोबारा रिगेन कर लिया था, मैंने थोड़ा उत्पा लिया था। लेकिन अभी भी उसको शिकायत यह था कि भाई हमारे पास तो इतने प्रिविलेजेस थे, आपने इतने प्रिविलेज छीन लिए, और अब आप कह रहे हो हम टैक्स भी दें, ये नहीं होगा। और आज के बाद कभी इस तरह का आप एब्सर्ड प्रपोजल लेके हमारे पास नहीं आया। तो कोलोन अपना सा मुंह लेके वापस आ गया, आके किंग को बोला कि वो तैयार नहीं है। अब किंग इस क्राइसिस को तो मैनेज कर नहीं सकता था, तो किंग ने कहा कि ठीक है, आप स्टेट जनरल की बैठक बुलाइए, स्टेट जनरल की। अब स्टेट जनरल की बैठक 174 इयर्स के बाद, अब बताइए, ये तो इस बात इट वाज टेंटेमाउंट टू द मोनार्की मेकिंग अ सरेंडर बिफोर द पार्लियामेंट। मतलब मोनार्की, इसका मतलब है कि अब हार गया कि हम चला नहीं सकते बिना पार्लियामेंट के। और यह सिग्नल जाना रेवोल्यूशनरी आइडियाज को और भी प्रोत्साहन देना था। यह सिग्नल जाना किंग की कमजोरी को उद्घाटित कर रहा था। अंत में चलिए 174 इयर्स के बाद स्टेट जनरल की सेशन बैठी। वंस द सेशन स्टार्टेड, उसमें एक तरह से समझिए तो इट ओपन द पैंडोराज बॉक्स। पैंडोराज बॉक्स कहते हैं भानुमति के पिटारे को हिंदी में। इसने भानुमति का पिटारा खोल दिया, क्योंकि जितने भी क्लासेस थे सब कुछ न कुछ उम्मीदें लगाए बैठे थे कि हम स्टेट जनरल के बैठक में किंग को ऐसे दबा देंगे, किंग को ऐसे दबा के अपने राइट को मनवा लेंगे। वो कहते थे हम अपने राइट को मनवा लेंगे, तो सबके अपने अपने एक्सपेक्टेशन थे। अब मुख्य मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं, मेंटली अलर्ट रहना। इन स्टेट जनरल जो मैंने जो कहा, जो फ्रेंच पार्लियामेंट है, इट वॉज हैविंग 3 चैम्बर्स। It was having 3 chambers. One chamber was first, second, and third. जो फर्स्ट चैम्बर है इसमें एरिस्टोक्रेटिक क्लास के रिप्रेजेंटेटिव, क्लर्जी क्लास को रिप्रेजेंट करता। ये एरिस्टोक्रेटिक क्लास, ये क्लर्जी क्लास को रिप्रेजेंट करता, ये एरिस्टोक्रेटिक क्लास को रिप्रेजेंट करता। ये यू कैन से मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली इन थर्ड स्टेट को, फर्स्ट स्टेट को, सेकंड स्टेट को, थर्ड स्टेट को,
In third state, here I have to inform you, my students, because this session of State General had to take place within the periphery of the palace, and this palace was lying here, you can say Versailles. So Versailles was a place that was the capital, and palace king, the royal palace of the king was lying there, and Louis XIV built this palace of Versailles, you know, so that was symbol of power and autocratic power of the monarchy. So this session had to take place within the periphery of this palace, and within the periphery of the palace, the lower class were not allowed. The lower class was not allowed. Lower class representatives were not allowed. So even the lower class was being represented by the same middle class. Okay. In third state, if you will just try to find out the numerical strength, what was the numerical strength of the which chamber? So my students, third chamber, this is the chamber, first chamber, second chamber, and third chamber. So my students, actually the numerical strength of the third chamber was much larger than the each chamber separate. And if you just go into measure the numerical strength, you will come to realize that the first chamber, the total member of the third chamber were just equal to the combined number of the first chamber and the second chamber. मतलब मैं आपको ये बताना चाहता, जो तीनों चैम्बर हैं, तो उसमें फर्स्ट चैम्बर में क्लर्जी है, दूसरे में एरिस्टोक्रेसी क्या है, थर्ड में थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंटेशन है. तो इसमें जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका जो नंबर है वो पूरे फर्स्ट चैम्बर और सेकंड चैम्बर के टोटल नंबर को मिला के लगभग बराबर है. तो अब पहले क्या होता था, देखो इसी मुद्दे पर मामला उलझ गया. पहले क्या होता था, जब स्टेट जनरल 1614 में जब उसका सेशन हुआ था, तब की बात बता रहा हूं, कि पहले जो वोटिंग होती थी तो तीनों चैम्बर की सेपरेट वोटिंग होती थी 1, 2 और 3, और दो चैम्बर मेजोरिटी डिसीजन इस आधार पर होता था कि कौन दो चैम्बर, चूंकि 3 है तो 2 मेजोरिटी हो जाती थी. तो नॉर्मली क्या होता था कि यू नो दैट कि ऑन मोस्ट ऑफ द issues, most of the major issues, both the aristocracy and clergy were having the identical view, you know, and third chamber was isolated. So in sum total, it was a very exceptional condition that the third chamber could have their own proposal accepted, and in most of the cases the proposal of the third chamber was defeated and the decision was taken on the basis of the combined effort of the first chamber and the second chamber. मतलब क्या होता था कि ये दोनों चैम्बर मिलकर डिसीजन लेते थे, थर्ड चैम्बर रह जाता था. लेकिन ये तो 174 इयर्स बैक की बात है ना. 174 इयर्स में मिडिल क्लास बहुत एम्बिशियस हो गया है, बहुत पावरफुल हो चुका है, अब बहुत आर्टिकुलेट हो चुका है. तो ये कह रहा है कि अब वह वोटिंग नहीं चाहिए, अब तीनों चैम्बर को मिला के वोटिंग करिए. तो मिडिल क्लास को उम्मीद यह है, एक्सपेक्टेशन है कि तीनों को मिलाकर वोटिंग होगी तो लगभग हमारे चैम्बर का जो नंबर है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, वही दोनों चैम्बर को मिला के लगभग बराबर है, तो 50% तो हमारी वोटिंग हो जाएगी. और उल्ट इसके अलावा जो फर्स्ट चैम्बर और सेकंड चैम्बर के कुछ प्रोग्रेसिव मेंबर है, वो क्रॉस वोटिंग हमारे फेवर में कर देंगे, तो हम मेजोरिटी में आ जाएंगे, हमारा प्रपोजल बढ़ जाएगा. Whenever the third state try to push its own demand, there should be the combined voting. So first chamber and second chamber were not ready for this situation. They opposed the move. So finally there was a tug of war. एक तरह से रस्साकसी हो गई, tie situation. And then the French monarch was helpless. If the French monarch could have taken a tough decision and compelled the first chamber to second chamber, or the clergy and the aristocratic class to accept the proposal of the combined voting, the situation might have been overcome. But why did monarchy take such a step, you know? Because if the power of aristocratic class and clergy class and their privileges could have been removed, so even the, you can see, privilege of the monarchy could have been damaged and you can say adversely affected. जैसे मैं एक सिचुएशन आपको इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं कि अगर मोनार्की आ गया था, लीडरशिप अपने हाथों में लेता, कहता एरिस्टोक्रेटिक क्लास और चर्च को कि कंबाइंड वोटिंग करिए,
तो फिर जीत हो जाती थर्ड स्टेट की, और थर्ड स्टेट तो मोनार्की के पावर को चेक करना चाहते थे, तो मोनार्क को कहते हैं कि आपका ऑटोक्रेसी खत्म, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बननी है और आपको असेंबली के थ्रू डिसीजन लेना है, जो मिडिल क्लास का डिमांड होता था। इससे मोनार्की चुप्पी मार गई, क्योंकि उसको तो फायदा था कि ठीक है इनके बीच आपस में डिफरेंसेस रहे तो हमारा पोजीशन स्ट्रांग रहेगा, तो मोनार्की ने इस पर कोई डिसीजन नहीं दिया। इसी पर थर्ड चैम्बर को रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ये घटना है मई 1789 की, उसने अंत में इस स्टेट जनरल का बाइकआउट कर दिया। उसने देखा कि भाई इसमें बैठने का कोई फायदा तो है नहीं, हमारी बात तो चल नहीं रही, और सामने में टेनिस कोर्ट था, टेनिस कोर्ट। तो थर्ड चैम्बर के प्रतिनिधि टेनिस कोर्ट में चले गए और टेनिस कोर्ट में जाकर उन्होंने एक पृथक अपना सेशन बुलाया, कहा कि भाई हमारी असेंबली यही है, हम नहीं मानते हैं स्टेट जनरल को, और यही जो असेंबली है, यही असेंबली हमारी असेंबली है और हम अपना डिसीजन लेंगे। और इसने अपने आप को 20 जून को, ये तो मई में शुरू हुआ था, पहले तो इन्होंने टेनिस कोर्ट ओथ कहते हैं, टेनिस कोर्ट में इन्होंने शपथ ली कि जब तक हम फ्रेंच का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे तब तक हम टेनिस कोर्ट से नहीं हटेंगे। और फिर 20 जून को इसने अपने आप को घोषित कर दिया कि हम नेशनल असेंबली हैं, हम फ्रांस का पार्लियामेंट है, हम फ्रांस का रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। इसका मतलब है कि रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, मिडिल क्लास ने सिस्टम पर चोट करनी शुरू कर दी। तो माय स्टूडेंट्स, प्लीज give me the information, all of you are requested to give me the information up to this point. Are you clear or do you need my help? Please be fast. आप लोग देर कर देते हो। Okay, yes. My students, the revolution started. Revolution started. My students, this is tennis court, you know, tennis court. Be mentally alert. Tennis court. Here you can see National Assembly. वही थर्ड स्टेट became national assembly, you know, declared itself. अब when that they took the oath कि we will sit in the tennis court, no one can remove us from here. तो मोनार्की को लगा कि अरे ये तो बहुत रायता फैला दिया इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, वहां से उसने पुलिस और आर्मी को भेजी मोनार्की की, जाओ टेनिस कोर्ट को खाली करवा दो, वैकेट द टेनिस कोर्ट, एक्सपेल देम। इफ दे कुड हैव बीन एक्सपेल्ड देम, you know, so the revolution might have been nipped in its bud. Revolution might have suppressed in its very inception. अगर पुलिस और आर्मी जिस तरह गई और माय स्टूडेंट्स अगर टेनिस कोर्ट को उसने खाली करवा लिया होता तो रेवोल्यूशन आरंभ स्टार्ट होने से पहले ही दब जाती, मामला समाप्त हो जाता। लेकिन जानते हो क्या हुआ, ये चूंकि लोअर क्लास में तो रेस्टलेसनेस था ही, और लोअर क्लास लीडरशिप के लिए मिडिल क्लास की ओर देख रहे थे, उनका अपना लीडर नहीं था, वो तो देख रहे थे हमारे बड़े भैया, हमारे जो एल्डर ब्रदर हैं मिडिल क्लास, वो हमारे लिए भी सोचेंगे। तो लोअर क्लास तो उस समय उनका अपना लीडरशिप नहीं है, तो मिडिल क्लास की तरफ देख रहा है। उस समय लोअर क्लास में कौन है, तो एक तो आर्टिजन्स है, क्राफ्ट्समैन, तो फ्रेंच का जो फ्रांस का आर्टिजन्स है पेरिस का, वो एक्टिव हो गया। एंड जब ये इंफॉर्मेशन वहां रूरल फ्रांस में गया तो वहां से किसान, वहां के जो फार्मर्स थे, पेजेंट्स, वो मार्सलेज गाते हैं। मार्सलेज वहां का एक लोकल सॉन्ग होता था, पेजेंट्स लोग गाते थे, मार्सलेज बोलते हैं। अभी जानते हो नेशनल सॉन्ग है फ्रांस का, रेवोल्यूशन में बहुत पॉपुलर हुआ मार्सलेज। तो मार्सलेज गाते हुए किसान एकदम पूरे उत्साह के साथ सब दौड़ पड़े पेरिस की तरफ, और जब पुलिस आर्मी पहुंची तब तक हजारों लाख लोग टेनिस कोर्ट के घेर कर खड़े हो गए थे। अब इफ द पुलिस एंड आर्मी कुड हैव
used the coercive power to vacate it, it might have resulted into heavy casualties of the people. So monarchy could not dare to use the coercive power and revolution occurred. मतलब कि अब अगर चाहता मोनार्की कि भाई इसको हम वैकेट करवा लें तो फिर बहुत ज्यादा उसको वायलेंस करना पड़ता, क्योंकि तब तक हजारों लाखों लोग वहां से घेर कर इसको घेर लिया था और थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को बचा लिया, तो रेवोल्यूशन अकर्ड हो गया, रेवोल्यूशन हो गया। ये 1789 में, जून 1789 में रेवोल्यूशन अकर्ड। अब मैं स्टूडेंट्स, आपने एक बात महसूस की होगी, आपने मेरा स्टडी मटेरियल पढ़ा है, आज फिर जाके आपको पढ़ना है, यू हैव टू कंटिन्यूअसली रीड इट। माय स्टूडेंट्स, हियर यू नो कि इस रेवोल्यूशन को हम कई स्टेज में बात नहीं है, 4 स्टेज में बांट कर देखा है। क्यों देखा है? तो ड्यू टू द चेंजिंग क्लास इक्वेशन। चेंजिंग क्लास इक्वेशन है, आई एम मेकिंग क्लियर द फर्स्ट स्टेज, डिफरेंट स्टेजेज stages of the revolution. अब देखिए, revolution has started, and in this revolution not simply the middle class but even the lower class participated. Leadership was into the hand of the middle class, but lower class was also active, you know. अब now the basic problem was, the revolution started, the basic problem was even the third state was not a monolithic class. It consisted of the middle class and lower class both, and there was the divergence in objectives of both the classes. The middle class leadership simply, you can say, preferred constitutional monarchy. क्योंकि देखो, आपको यही सोचना है कि इनलाइटेंड थिंकर्स जितना सोच रहे थे या जितना चेंज लाना चाह रहे थे, इनलाइटेंड थिंकर्स एक लिमिटेशन से ज्यादा चेंज नहीं लाना चाह रहे थे। पता है आपको, मैंने स्टेटमेंट दिया था, आप लोगों को जरूर याद होगा, आप लोग ब्रिलियंट पीपल हो, और वो मैंने स्टेटमेंट कहा था कि द गवर्नमेंट शुड बी फॉर द पीपल बट नॉट बाय द पीपल। मतलब वो लिमिटेड मोनार्की चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहते थे, डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे, वे लिमिटेड फ्रेंचाइज चाहते थे, वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि लिमिटेड फ्रेंचाइज हो। और लोअर क्लास क्या है कि मिडिल क्लास लिमिटेड फ्रेंचाइज चाहता था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहता था, और लोअर क्लास कंप्लीट डेमोक्रेसी चाहता था। तो दोनों का जो व्यूज है वो डाइवर्जेंट था, दोनों का ऑब्जेक्टिव डाइवर्जेंट था। इसलिए जो रेवोल्यूशन है वो रेवोल्यूशन वाज गोइंग टू बी वेरी कंफ्यूज 4 स्टेजेज। इन द फर्स्ट स्टेज, first stage you might have find there 1789 to 92. What is the specialty of the stage? In this stage you can say कि leadership was into the hand of the middle class, but on middle class leadership there was the pressure from the lower class. तो इस टाइम में तुम देखोगे फिर भी जो मिडिल क्लास लीडरशिप है उसने रेवोल्यूशन को कंट्रोल करके रखा, क्योंकि उसके ऑब्जेक्टिव से बाहर रेवोल्यूशन ना जाए। अब देखो, ये प्रॉब्लम अमेरिकन रेवोल्यूशन में नहीं आया था। अमेरिकन रेवोल्यूशन में लोअर क्लास आर्टिकुलेट नहीं था। लोअर क्लास ने थोड़ा सा वहां सिर उठाया था जिसकी चर्चा हमने नहीं की थी, लेकिन उसको बड़ी आसानी से मिडिल क्लास अपने इंपैक्ट में ले आया था। लेकिन यहां जो तुम देख रहे हो, यहां लोअर क्लास बहुत ज्यादा आर्टिकुलेट हो गया है, बहुत ज्यादा बाचाल जिसको बोलते, बहुत एक्टिव, बहुत एग्रेसिव। अब मिडिल क्लास लीडरशिप उसको कंट्रोल करके वैसा नहीं रख सकता। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट स्टेज में लोअर क्लास एक्टिव तो है, प्रेशर लोअर क्लास का है, लेकिन मिडिल क्लास लीडरशिप मैनिपुलेट करने में कामयाब रहा। तो हमें 2-3 इंसिडेंट दिखाता हूं। जैसे माया ने भी अभी पूछा था मिस्टर अंकुर कि द डिक्लाइन ऑफ बैस्टिले। तो पहले तो ये इसको कहते हैं मॉब, एक टर्म मिलेगा मॉब ऑफ पेरिस। मॉब ऑफ पेरिस का मतलब है कि जो फ्रांस के आर्टिजन्स हैं और पेरिस के आर्टिजन्स हैं, फ्रांस के पेजेंट्स हैं, जो टेनिस कोर्ट को बचाया था, उसको कहते हैं मॉब ऑफ पेरिस। वो पेरिस की भीड़ थी, उसको मॉब को कहते हैं भीड़, मॉब ऑफ पेरिस। जिसने टेनिस कोर्ट को बचाया था वो एक्टिव हो गए थे, वो पूरे फ्रांस में वो भी घूम रहे थे, मिडिल क्लास लीडरशिप की तरफ देख रहे थे, सोच रहे थे मिडिल क्लास लीडरशिप हमारे लिए कुछ करेगा। तो कई बार क्या होता था कि जो मॉब था वो अनकंट्रोल हो जाता था। उसी अनकंट्रोल्ड स्थिति में तुम देखोगे पहला इंसिडेंट, मतलब
द डिक्लाइन ऑफ बैस्टिले। डिक्लाइन ऑफ बैस्टिले 21 में हुआ है, तो 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 को डिक्लाइन ऑफ बैस्टिले, माने उसी को कहते हैं हिंदी में बास्तिल। तो डिक्लाइन ऑफ बैस्टिले, उसको बास्तिल जगह का नाम है, एक जगह है। व्हाट वाज दैट? इट वाज जस्ट, यू कैन से, इट हैड रिमेन्ड टू बी एन ओल्ड प्रिजन, एक पुराना जेल था। बट प्रेजेंटली इट वाज वर्किंग एज द स्टोरेज फॉर द रॉयल वेपन्स एज वेल, मतलब जो रॉयल वेपन्स होता था उसके स्टोरेज के रूप में भी काम करता था। अब क्या हुआ कि मॉब ऑफ पेरिस गया और वेपन्स को लूट लिया और जो भी गार्ड्स थे उसको मार डाला। अब मैं स्टूडेंट्स, इट वाज सिंपली अ केस ऑफ हुलिगनिज्म, बट इट बिकेम द सिंबल ऑफ द बैंकरप्सी ऑफ द मोनार्की। माने मोनार्क इतना कमजोर हो चुका है, इट वाज द सिंबल ऑफ पावर and the people's mob attack on the symbol of power, so it was symbolizing the decline of monarchy, कि मोनार्की का अब लगता है फ्रांस में दिन लद गए। माय स्टूडेंट्स, ये बैस्टिले का जो डिक्लाइन है उसका फ्रेंच ओरिजिन में बहुत इंपॉर्टेंस है। आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो पता होगा कि अभी मोदी जी को इसी साल 14 जुलाई को इन्विटेशन आया है, क्योंकि बैस्टिले डे मनाते हैं फ्रेंच लोग आज भी। तो मैक्रोन गवर्नमेंट ने, इससे पहले मनमोहन सिंह भी इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं बैस्टिले फंक्शन में, और अब मोदी जी को इस बार मतलब इनवाइट किया गया है बैस्टिले फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यह है बैस्टिले का डिक्लाइन, जो अभी माया ने क्वेश्चन पूछा था। माया, आई थिंक यू आर क्लियर। देन नेक्स्ट इंसिडेंट यू फाइंड हियर, यू नो, नेक्स्ट इंसिडेंट दैट इज abolition of feudalism. Abolition of feudalism, 4th August 1789. Now, my students, you may be a bit confused कि why I am mentioning the abolition of feudalism. अब तुम लोग कंफ्यूज इसलिए हो गए कि एक बार सर आपने कहा फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन कह दिया, आपने कहा फ्यूडलिज्म खत्म हो गया, यूनिवर्सल जस्ट सिस्टम गया, होली रोमन एम्पायर गया, फिर अबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म कह रहे हैं। ये क्या है मैं बताता हूं। देखो, उस समय मैंने करेक्ट कहा, एक पॉलिटिकल पावर के रूप में फ्यूडलिज्म जा चुका था, मैनरियल सिस्टम भी टूट चुका था। यू आर करेक्ट। बट माय स्टूडेंट्स, एज इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिविलेजेस ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक क्लास एंड क्लर्जी क्लास, दिस फ्यूडलिज्म वाज स्टिल लिंगरिंग। मतलब एग्रेरियन जो रिलेशन होता था ना, उसमें बहुत सारे फ्यूडल ड्यूज देने पड़ते थे, कुछ गिफ्ट देने पड़ते थे, चर्च को भी थोड़ा टैक्स देने पड़ते थे। तो थोड़ा उनका जो क्लर्जी था और जो फ्यूडल लॉर्ड्स था, जो एरिस्टोक्रेसी क्लास, उनका अभी भी कॉमन पीपल पर दबदबा था। और एक बात और भी होती थी कि उनको कुछ जुडिशियल पावर भी थे, एरिस्टोक्रेटिक क्लास के, ये सब भी कुछ थे। तो एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म का मतलब है कि अब देयर विल बी, फ्रांस विल बी द कंट्री ऑफ फ्री पीजेंट्री। अब एकदम सब इक्वल हो जाएगा, अब कोई किसी के मालिक नौकर वाली फीलिंग नहीं रहेगी। तो ये जो एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म है, ये एक बड़ा रेडिकल स्टेप फ्रेंच एबोलिशन का माना जाता है, जो 4 अगस्त 1789 को हुआ है। और ये जो इंसिडेंट है, इसमें क्या हुआ? तो सपोज यू कैन से कि नाउ द aristocratic class lost its right for collection of tax and dues from the peasants. Even the priest lost the power of collecting tithe from the people. वो उनको भी टाइथ का जो कलेक्शन है, वो टाइथ का कलेक्शन रोकना है। और जो जुडिशियल राइट्स है, वो जुडिशियल राइट्स भी जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास का हो चला गया। तो कम से कम इस घटना के बाद, हालांकि इसमें जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास उसने एक चालाकी की, और क्लर्जी क्लास ने, मतलब इसने क्या किया कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी, उस पर उनका कंट्रोल रहेगा। उसमें उनका कोई, जैसे उनका डिमेंस लैंड था, उसमें कोई टच नहीं, वो कॉमन पीपल को नहीं देंगे। तो इनफैक्ट दे प्रिजर्व देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी, दे प्रिजर्व देयर राइट टू प्रॉपर्टी। हु? एरिस्टोक्रेटिक क्लास और क्लर्जी क्लास। तो इस पर कोई क्रिटिक कहते हैं कि भाई उन्होंने
कम इंपॉर्टेंट राइट को गवाकर ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट को बचा लिया। वो अपना वैसे भी जो चीज उन्होंने छोड़े वो तो पहले ही टूट चुके थे, और प्रॉपर्टी राइट को किसी तरह बचा लिया। खैर एनीवे, France became the first country of free citizen after abolition of feudalism on 4th August 1789. So, Mr. Ankur asked my students, have they been clear? Please be fast, my students. My students, today time is over, so I have to stop here. I'll see you tomorrow. You'll go through the study material seriously. I'll just, any doubt is there, I'll just dispel the doubt tomorrow. Thank you very much. I'll see you.